final stage of a construction, whenever you have completed your construction work, it's about like a floor finishing bhi aa jayegi. We will discuss some of the other finishes like paint work, different types of floors, और different types of tiles available, marble, stone जो use करते हैं on different इसके arrangements हम इसमें discuss करेंगे. So final stage of a construction of a structure where it will determine the aesthetic of a structure and finishing जो भी आएगी floor की, it majorly depend upon two factors. First thing is the usage, कि आप वो floor किस purpose के लिए use कर रहे हो, and second depend upon the cost. जब भी आप कोई स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बनाओगे या जो भी मार्बल यूज कर रहे हो, टाइल कर रहे हो, हर एक की कॉस्ट फैक्टर डिफरेंट होगा. सो सरफेस फिनिशेस हैव critical influence on aesthetic quality of a space. In the selection and use of finished material, the following factors should be carefully studied. Color, texture, pattern, the way it meets the joints. If a finished material has modular characteristics, then dimension of the floor. First thing, आपको बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी है at finishes level. The color, texture, pattern, at which floor you are using. For example, अगर आप एक marble use कर रहे हो और you using a tile with some of the engraving, floor के लिए अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में यूज करोगे, so you preferably use such a floor जो कि थोड़ा resistant हो against wear and tear. घर में क्राइटेरिया फर्क होगा. कहीं सेंट्रल एरिया है, यू कैन यूज अ मोज़ैक आल्सो और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वन. सो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे. इफ आई टॉक अबाउट फ्लोर फिनिशेस, अमंग द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ अ फ्लोर, फंक्शन ऑफ फ्लोर, फर्स्ट प्राइस, मेंटेनेंस एंड कंफर्टेबिलिटी ऑफ दैट वन. along with the floor finishes, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. वॉल फिनिशेस में among the factors which influence the selection, price, sound insulator, heat. जहाँ पर भी आप घर पे वॉल की इंस्टॉलेशन करनी है या फिनिशिंग करनी है, if there is a direct sun on it, तो obviously you have to provide the heat insulator. अगर नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपकी रूम की प्रॉपर एयर कंडीशनिंग और ये चीज़ें नहीं होगी. Attractive, beautiful, durable, long lasting, resistance to chemical reaction. वॉल में ऑब्वियसली बहुत सारे फिनिशेस आती हैं. अगर आपने पहले भी मतलब घरों में काम करा है, ये देखा है, यू मे यूज emulsion पेंट आल्सो, टेक्सचर्स यूज होते हैं, ग्राफी यूज होती है, along with that wallpaper. So different options are available with us. As far as the roof finishing, roof is also very important because roof पे obviously रेन वाटर भी आता है, डायरेक्ट सन एक्सपोजर भी होता है. फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द selection of roof finishing. Strong, it first thing it depend upon strong or not load of that roof, able to inverse light, means direct light आएगी उसके ऊपर. Beautiful, attractive, cost और cheap and big. depend करता है. सिंपल अगर आप देखो आज से कुछ साल पहले तक तो रूफ के ऊपर सिंपल वो जो ब्रिक टाइल्स यूज करते थे, बट नाउ डेज अलॉन्ग विद सम ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल वो उसके ऊपर मार्बल इस तरह के भी यूज कर रहे हैं, जो कि उसको एक एस्थेटिकली गुड कर देता है और सेकेंडली ऑब्वियसली वो ड्यूरेबल भी है. बट सम प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर. उसमें अर्थ इंसुलेशन एज प्रॉपर नहीं होती. अगर आप उसमें अर्थ इंसुलेशन नहीं देते तो हीट का प्रॉब्लम रहता है, वो डायरेक्ट हीट जो है वो ट्रांसफर करता है. If I talk about paints, use of paints made, for example, can be used on a wood, steel, concrete, or brick. Function of paint is to protect the material from weathering, oxidation process, and damage by insect, to improve the beauty of a material and to facilitate the cleaning process. Okay, so these are some objective of paints. Emulsion paints are available which are non-shiny and suitable for brick walls and concrete walls. आपने देखा मोस्टली घरों में emulsion, प्लास्टिक emulsion यूज करते हैं. एंड एक्सटीरियर और इंटीरियर फेस पे अगर ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रेनफॉल की, देन वी गो टुवर्ड्स वेदर शील्ड. वो वेदर शील्ड ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है अगेंस्ट रेनफॉल. एल्युमिनियम पेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट paints, so aluminum paint can be used as a basic paint on the surface of a metallic material, especially जो aluminum filters वगैरह पे होता है. और bituminous paint
give protection to materials. Those can easily be corroded, such as steel, and it is cheap. ऑयल पेंट भी यूज करते हैं, अगर आपने देखा हो दरवाजों को, ग्रिलों को ये यूज करते हैं, दैट गिव अस अ ग्लॉसी और शाइनी सरफेस। इसको कोई ना कोई मटेरियल में मिक्स करके लाइक केरोसिन ऑयल या उसमें यूज करते हैं पेट्रोल में। A paint coating that lack pigments which give a transparent or translucent finish to the wood. अगर हम wood की बात करें तो wood में normally varnish use करते हैं, and sometimes we use polish. अगर आपने देखा, this paint give us a hard glossy transparent coating. It greatly enhance the natural beauty of and figure of a wood. Method of polishing the wood with varnish is French polishing, and ensure the surface are clean, no dust और स्मूथ बिफोर पॉलिशिंग। अगर आप वुड में देखो, कभी भी आपने ये वो डोर्स अगर देखा हो, तो इन रियलिटी इन ओरिजिनल कंडीशन वुड ऐसी नहीं होती। जब इस पे पॉलिश करते हैं, ऑब्वियसली वो मटेरियल पॉलिश का होता है, दैट इज मिक्स विद द स्पिरिट। उसके बाद इसको प्रॉपरली उसको पॉलिश करते हैं, देन वार्निश जो है इसमें ऑब्वियसली शाइन लाती है। सम टाइम यूज लैकर सिलर, वो लैकर इसमें शाइन भी लाते हैं, एंड आल्सो इट you can say seal or lock that color. जो भी कलर आप उस वुड के ऊपर देते हो, वुडन मटेरियल के ऊपर, उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर देती है। इन लेटर ऑन अगर कोई वाटर का इफेक्ट आता है या वो मॉइस्चर से इन कांटेक्ट होता है, दैट इट सेव दैट। सो दिस गिव अस अ सिंपल एग्जांपल ऑफ वॉल फिनिशिंग। डिफरेंट टेक्सचर्स है, पेंट्स है, वॉलपेपर्स भी आएंगे इसमें। वॉलपेपर्स वैरायटी ऑफ पैटर्न, कलर्स एंड फिनिशेस। Most popular alternate to painting, understanding the impact of a pattern. Obviously जहाँ पर पेंट इतना सक्सेसफुली, या समटाइम हम अपनी चॉइस से भी वॉलपेपर लगाते हैं डिफरेंट टेक्सचर्स के। कुछ जगह पर थोड़ा सा पानी वगैरह का प्रॉब्लम हो तो वॉलपेपर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए एग्जिस्ट कर जाता है। स्टिल देयर इज अनदर ऑप्शन आल्सो, आजकल वॉल पैनलिंग भी होती है। So understand the impact of color design can room appear a larger or more stylish. Selection of wallpaper has to consider the climate to ensure long lasting. If you see different options are available in wallpapers, वो room का 3D views और इस तरह की चीज़ों में भी बहुत सारे काम आते हैं और उसको different appearance देते हैं. Now next come to the plaster. If I talk about plaster, तो plaster तो एक necessary part है। Different types of plaster available है। Gypsum plaster है, you can do the plaster with the ordinary Portland cement. अगर आप simple walls की example लो घरों में, तो OPC है ना, simple ordinary Portland cement is mixed with the sand and do the plaster. That plaster not even cover the surface of a bricks. Also it enhances the strength और उसकी plain surface finish आपको वो देता है. So plaster refer to a various mixes applied in pasty form to the surface or ceiling in a plaster stage and allowed to harden and dry. The most common type of plaster used in construction is gypsum plaster, which is made by mixing calcinite gypsum with water. पहले भी और अब भी काफी जगह ये यूज होता है, और फाइन सैंड और लाइट एग्रीगेट भी इसमें यूज करते हैं. जिप्सम प्लास्टर इज ड्यूरेबल, relatively lightweight, fire resistance. Gypsum powder होगा water and light aggregate. However, it is not suitable for moist and wet condition. But this gypsum plaster cannot be used outside. यानी कि आप अगर आप उसको कोना के हम बाहर वाली साइड पे वॉल्स की वो इसलिए सूटेबल नहीं, वेट कंडीशन में ये प्रॉब्लम करता है. सो पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर जो है वो एक्सटीरियर फेस पे यूज करते हैं, बट हमारे यहाँ ज़्यादा ट्रेंड यही है. जिप्सम प्लास्टर पहले किसी दौर में होता था, यहाँ आप आजकल ओपीसी का प्लास्टर करते हैं इनर और आउटर फेस पे. इफ यू सी दिस प्लास्टर किया की वॉल है उसके ऊपर प्लास्टर किया गया विद आफ्टर 2 कोट और 3 कोट जिप्सम प्लास्टर इनर फेस पे, और ये जो है कंक्रीट वॉल का प्लास्टर विद जिप्सम. हाँ, अब और नॉर्मली तो ये कोट डिपेंड करता है कि अगर आप सिंपल बात करें ओपीसी का, तो सिंगल प्लास्टर भी बहुत है. डिपेंड करता है कि वॉल की कंडीशन क्या है. वॉल इज एक्जैक्टली वर्टिकल इन प्लम लाइन, वो अगर वो बिल्कुल सीधी है तो सिंगल प्लास्टर में भी उसकी सरफेस फिनिश कवर की जा सकती है. व्हाट इज जिप्सम बोर्ड? Gypsum board is a sheet material used for covering walls. It consists of a gypsum core, surface, and edge to satisfy the specific performance, location, and application. It has a good resistance, fire resistance, and dimensional stability.
Gypsum board is often referred as drywall because of its low moisture content and no water. It's applicable interior. ये एक तो पहली बात है, इंटीरियर वॉल में आता है, एक्सटीरियर में क्योंकि जिप्सम उससे रेन वाटर से खराब हो जाता है. One panel is joined with another one, either रूफ जॉइंट इस तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, राउंडेड से भी, बेवल्ड से भी, और उसके बाद में इसको फिल किया जा सकता है या ये ग्रुप रहने भी दिया जाता है. So these joints like this, gypsum board यूज करते हैं इनर साइड, कर्व अप टू सर्टेन रेडियस. कर्व में भी आ सकते, सीधे भी आ सकते हैं. हम बहुत सारी जगह पर एरियाज में इसको जिप्सम बोर्ड को यूज करते हैं ओनली फॉर कवरिंग, मेड अप ऑफ अ जिप्सम शीट्स. ठीक है, पार्टीशन के लिए भी करते हैं. नाउ नेक्स्ट कम टू द फ्लोरिंग. if we talk about flooring, flooring में different types और options available है. Simple ceramic tiles हैं. Ceramic tiles are relatively small modular surfacing made up of a clay or other material, and these tiles are fired in a kiln at high temperature. The resulting is durable, tough, dense, and water resistant, difficult to stain and easy to clean. The thickness is varying from 1/4 to 3/4 of inch. Okay, it also depends कि आप ceramic tile का thickness भी vary कर सकते हैं, depend करता है जैसे इसका size बड़ा होता जाएगा. Obviously, अब ये है normally available 10 inches में 1 feet में. अगर मैं ये tile को 2 feet 3 feet में ले जाऊँ, I will go for the higher thicknesses. So ceramic tile is available maybe it is glazed or unglazed. वॉशरूम में आपने देखा हो तो पहले किसी दौर में सारी ग्लेज टाइल्स ही लगती थी, बट नाउ डेज दे गो फॉर अनग्लेज आल्सो, स्पेशली जो फ्लोर के ऊपर लगती है. वन ग्लेज इसलिए ताकि ना करे. So glazed tile have a face of ceramic material fused into the body of a tile and may have glossy metal or crystalline finishes. Normally जो glazed tile है उसकी glossy finish आती है, और unglazed की having hard and test to drive the color of the clay, और उसका कलर normally color of the clay से depend करता है, and it is not a glossy one, and it's you can say dull matte color में होती है, और color of the clay. Unglazed ceramic mosaic tile means formed by dust press or plastic method, either porcelain or natural clay, plain or abrasive mixture throughout, homogeneous color throughout of the structure. अच्छा, अगर आप ये देखो तो ये नॉर्मली इसका सारा कलर होमोजीनियस रहता है. होता ये भी पोर्सलिन टाइल कोई प्लास्टिक मेथड के थ्रू है, बट मोज़ैक नॉर्मली करते क्या है कि ये पीसेस में बनता है. ठीक है, टाइल का सेरेमिक मोज़ैक है. नॉर्मली ये स्पेन में भी स्पेनिश मोज़ैक बहुत ज़्यादा फेमस है. ये स्टोन्स में भी बनाते हैं, डिफरेंट स्टोन्स को कंबाइन करके, तो उससे ये इस तरह का टेक्सचर बनाते हैं. किसी का कलर वाइट होगा, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, इस तरह के कलर के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बनाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अनग्लेज्ड सेरेमिक मोज़ैक टाइल्स. अच्छा, क्वेरी टाइल्स के है बेसिकली ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड फॉर्म बाय एक्सट्रक्शन मेथड, आइदर नेचुरल क्ले और शेल कंपोजिशन. क्वेरी टाइल्स ग्लेज भी होती हैं और अनग्लेज भी होती है. एक्सट्रक्शन मेथड से बनाते हैं क्ले या शेल के, यानी कि कोई भी इसकी मिक्सर बनाते हैं. आपने ये बॉक्सेस देखा हो कि जिस तरह का बॉक्स का शेप है, जिस तरह की हमें शेप चाहिए टाइल की, उस शेप का वो बना के और उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्ले से. ठीक, इसमें और पेवर में थोड़ा सा फर्क है. अगर आप पेवर देखो, पेवर भी इसी शेप के बनते हैं. पेवर आपने देखे होंगे बहुत सारे पेट्रोल पंप पे. पेवर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें मेथड हम यूज करते हैं डस्ट प्रेस मेथड, और ये पोर्सलिन के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पेवर्स होते हैं कंक्रीट के, स्पेशली बिकॉज हाई ड्यूरेबल सर्फेसिस के लिए. लाइक आपने देखा तमाम पेट्रोल पंप्स पे, फुटपाथ्स पे पेवर्स यूज किए जाते हैं. बिफोर दैट they were of porcelain, now they are making them for a concrete. उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा करते हैं. और इसी तरह सारे इकट्ठे शेप डिपेंड करती है. रेक्टेंगुलर बॉक्स है, टन की है, आई शेप है, जिस तरह की भी शेप है उस तरह के कट करके उसको इकट्ठे बनाते हैं. So this give us a simple floor finish with a porcelain tile, a ceramic mosaic or paver
formed by dust press method and composition resulting in a dense smooth fine grain. अगर आपने देखा हो तो इसके ये joints है, these joints are properly filled with any of the material. इन joints को obviously tile का size तो ये है, but this should be properly filled. And why there is a reason why we are giving that joints. अगर आप joints नहीं देते और properly हर tile को एक दूसरे के साथ combine करके सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी जो बॉन्डिंग है, नीचे बॉन्ड यूज किया जाता है, उसकी प्रॉपरली जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन सर्टेन वेपर्स गैसेस रिलीज होती है, उसको स्पेस नहीं मिलती एंड दैट रिमेन इनसाइड ऑफ दैट बॉन्ड एज अ एंट्रैप्ड एयर. सो उसके बाद वो ऑब्वियसली जब वो ट्रैप्ड एयर के बाद उसमें से एक मिनट है वो प्रॉपरली जो है ना एंट्रैप्ड एयर के बाद जो है वो उसमें से वो निकलती थी गैसेस और फाइनली वो क्या करता है कि वो टाइल जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. सो अगर आप देखो तो प्रॉपरली एक तो ये जॉइंट करने चाहिए कॉर्नर्स को कॉर्नर के साथ एंड आल्सो दे शुड बी सम ऑफ द गैप बिटवीन देम. वो गैप से उसकी प्रॉपरली गैसेस रिलीज हो जाती है एंड लेटर ऑन यू फिल इट विद एनी ऑफ द फिलर मटेरियल. नाउ नेक्स्ट इज ग्लेस वॉल टाइल्स. अगर आप ग्लेस वॉल टाइल्स की बात करो, ये बहुत सारी जगह पर इसे मतलब हमारे जो पुराने इलाके हैं मुल्तान वगैरह इन साइडों पे जहाँ पर मज़ार आता है उधर देखा जाए तो इधर इसको सुर्खी भी बोलते हैं, ग्लेस सिरेमिक टाइल. इस तरह की बहुत सारी टाइलें अवेलेबल है. नॉट एक्सपेक्टेड टू विथस्टैंड एक्सप्रेसिव इम्पैक्ट. एक तो इन पे इम्पैक्ट लोड नहीं आता, ये सिंपल वॉल्स पे यूज़ करते हैं. फ्रीजिंग एंड थॉइंग को भी रेजिस्ट नहीं कर सकते. नॉट सुटेबल फ्लोर. इट इज़ ओनली फॉर एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल पर्पसेज ऑन वॉल्स. ये आपको मैं सिंपल एग्जांपल शो करता हूँ कि मज़ार है उस पर जो है ना वो यूज़ किया गया विद लाइम प्लास्टर, ये सिरेमिक टाइल्स यूज़ की गई. अच्छा, सिरेमिक टाइल्स हो या कोई भी हो, जब आप वॉल के ऊपर इसको पुट करते हो सो दे सिरेमिक टाइल आइदर बाय मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बाय थिनेस्ट प्रोसेस और थिन बेड. इन थिनेस्ट ceramic tile is bonded or to a continuous stable backing with thin coat of dry set mortar. जो ड्राई मोटार होता है उसके साथ इसको फिक्स करते हैं. लेटेक्स पोर्टलैंड सीमेंट एपॉक्सी मोटार और ऑर्गेनिक एडहेसिव. जो थिकेस्ट प्रोसेस होता है, इन थिकेस्ट प्रोसेस it is applied over a bed of Portland cement. They relatively allow accurate slope turn in the finishes. Mortar bed is not affected by prolonged contact with the water. अच्छा, thickest method और thinnest method में ये फ़र्क है कि ये नॉर्मली ड्राई बेड के ऊपर जो वॉल्स के ऊपर यूज़ करते हैं थिनेस्ट प्रोसेस, उसको ड्राई बेड पे यूज़ करते हैं और इसमें स्लोप का इतना इशू नहीं होता. जो थिकेस्ट मेथड है इसमें ओवर पोर्टलैंड सीमेंट इट्स relatively allow more accurate slope, turn gains in finishes and it's not affected by water. अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो रिक्वायर्ड दोनों की केस में अगर आपने लेट से इस केस में टाइल लगानी है वॉल के ऊपर टाइल लगानी है या इसके ऊपर टाइल लगानी है, सो लेट से मैं इसकी अगर आपको बात कर रहा हूँ कि मैंने ये फ्रंट वॉल पे ये टाइल लगाई है तो सो यू शुड हैव अ सॉलिड बैकिंग. टाइल के लिए पहली चीज एक तो रिक्वायर्ड है दैट द वॉल शुड बी फिनिश. जिस वॉल पे टाइल लगानी है फर्स्ट थिंग इट शुड बी एग्जैक्टली बट इन प्लम लाइन. सेकंड थिंग अगर वो प्लम लाइन में नहीं भी है, थोड़ा बहुत मार्जिन है, दैट शुड बी कवर्ड इन प्लास्टर. उसको प्लास्टर किया जाता है और वो प्लास्टर को इंटेंशनली रफ किया जाता है आफ्टर डूइंग दैट प्लास्टर. रीजन इज क्योंकि उस पर टाइल का बॉन्ड बनना होता है. Then after that with a small mortar or you can say bond, आप उसको simply उसके ऊपर erect कर देते हो. So thinnest installation required a solid dimensional stable backing. पहली बात है stable backing होनी चाहिए. In wet area around bathrooms and shower, use half-inch thick glass fiber reinforced concrete bedboard and set the tile with any of the mortar. जहाँ पर भी वॉशरूम में मतलब आप ये पानी का वो ड्रेन उसको ये रहता है तो उस केसेस में आप इसको जो है ना डायरेक्टली यू कैन से विद फाइबर reinforced concrete या आप सॉलिड बैकिंग के साथ एनी ऑफ द मटेरियल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड मेसनरी सर्फेसेस शुड बी क्लीन, साउंड एंड फ्री फ्रॉम efflorescence when dry set or latex Portland mortar is to be set with the tile. ये तो हर केस में आपको रखना है कि जब भी आपने टाइल यूज करनी है, होता ये है कि जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है ड्यूरिंग ग्रे स्ट्रक्चर विद द पैसेज
टाइम उसमें कोई ना कोई सॉल्ट्स आ जाते हैं, फ्लोरेसेंस आ जाती है, दैट शुड बी क्लीन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ अ टाइल्स, क्योंकि अगर वो क्लीन नहीं करोगे तो उस बॉन्ड का या उस मोर्टार का, पॉक्सी का, टाइल के साथ तो बॉन्ड होगा पर उस वॉल के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, so that should be clean properly. So suitable packing for cement thickest process में भी यही है कि आपकी पैकिंग सूटेबल होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रेट पैकिंग हो, और द सेटिंग बेड which is filled with the Portland cement, sometimes hydrated with 3 by 4 pin on wall. Tile must be laid with 1.5 inch 2 bond cord near Portland cement or dry set to be bed. Uh, sorry, in still plastic stage coat of latex mortar after the mortar is cured. अगर आप ये देखो, ये सिंपल थिकनेस प्रोसेस में क्या है, सॉलिड बेड है, along with that 2 coats of that mortar, जो बॉन्ड है उसका यूज करते हैं, देन वी अप्लाई द, इसमें डबल कोट यूज करते हैं, उसमें सिंगल कोट यूज करते हैं, सिंपल यही मेथड है. इंस्टॉलेशन ऑफ टाइल यूजिंग थिनेस्ट मेथड, अगर आप ये देखो सिंपल क्या है, एक मोर्टार को या बॉन्ड को वो ले कर रहा है, एंड लेटेक्स मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट बीइंग स्प्रेड ऑन अ कंक्रीट स्लैब विद अ नॉच ट्रॉवल. ये नॉच ट्रॉवल आपने शायद देखा हो, नहीं देखा तो मैं फिगर में दिखाया, तो ये बैक टाइल उसने इंस्टॉल कर दी है, एंड व्हाट दे डू, फर्स्टली दे सिंपली पुट दिस पोर्टलैंड मोर्टार, आफ्टर दैट दे ट्रॉवल इट विद दिस नॉच ट्रॉवल, इसको प्रॉपर्ली स्प्रेड करते हैं. ये नॉचिंग करने का, नॉच ट्रॉवल यूज करने का, ये अगर आप देखो ना, ये जो इसका ट्रॉवल के ना बॉटम पे नॉचेस बनी हुई है, नॉच करने का पर्पस ये होता है कि ये प्रॉपर्ली स्प्रेड कर देता है सरफेस पे, whenever you put the tile, तो इसकी बॉटम प्रॉपर्ली फिल हो जाती है, ना मटेरियल ज्यादा होता है ना कम होता है, एंड इट कैन बी आफ्टर दैट डूइंग दैट वन, यू सी ये पूरा का पूरा, इसको पहले तो इसको हम लगाते हैं, एंड ऑल दिस गैप जो बीच में ग्रूव्स है, so a tile is set in the mortar. The purpose of notch trowel is to properly mount of mortar to be laid. When this tile is separate, वो give it's evenly distribute that one. और एक और चीज है, whenever you will go to the site also, आप देखो कि जब काम होगा, इसकी जो स्प्रेडिंग है, तो ये बहुत मैटर करती है. दूसरा, whenever they tap it with the rubber hammer, वो आपने देखा एक रबर का हैमर होता है, उससे जब टैप करते हैं, they listen the sound. That also matters a lot. कि जब इसको टैप करते हैं, उनको एक साउंड आता है, अगर तो इसके नीचे प्रॉपरली ये बॉन्डिंग मटेरियल अवेलेबल है, तो वो साउंड की वैल्यू डिफरेंट होगी, डिफरेंट, और अगर इसमें कहीं ना कहीं गैप्स है, तो वो बोलेगा थोड़ा सा, उसमें से ना एम्प्टी वॉइस क्रिएट होगी. फॉर दैट केसेस वो इसको दोबारा उठाएंगे, टाइल को थोड़ा सा मोटार डालेंगे, अगेन जो बाइंडिंग मटेरियल है फिल इट, जहां जहां पर कम होगा उसको फिल करके उसको कवर करेंगे, बिकॉज बॉटम कंक्रीट सरफेस वो 100% सेम नहीं है. वो अगर 100% एक लेवल पे होती तो फिर तो हमें ओसी के ऊपर डायरेक्टली लगा देते टाइल, दोबारा बॉन्ड को लगाने की जरूरत है. एक तो बॉन्ड उसका अच्छा बॉन्ड बनाता है विद कंक्रीट, सेकंड जो थोड़ा बहुत कंक्रीट में गैप रह जाता है उसको भी कवर करता है. आफ्टर दैट दे फिल द ग्रूव विद दिस एनी ऑफ द मटेरियल. ग्राउट यूज करते हैं जो कि इनके टाइल के बीच में जो गैप है उन सब में फिल करते हैं. नॉर्मली जब टाइल लग जाती है 24 घंटे तक उसको ड्राई होने देते हैं, लेट इट ड्राई, आफ्टर ड्राइंग उसको ग्राउट्स को फिल करते हैं. नेक्स्ट इज टेरेजो. अच्छा, ये टेरेजो भी आपने मतलब देखा होगा, या इसके बारे में आपने यू कैन से सुना होगा. वन मिनट. Terrazzo is a mosaic flooring or paving composed of a marble or other stone chips set in a cementitious or resignation matrix, ground, polish, and dry. It is a dense, extremely durable, smooth flooring surface, mortar coloring by different type of aggregates. आपने मतलब पुरानी बिल्डिंग्स में देखा होगा, हमारे इस तरह की चिप्स होती थी और उसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते थे. वो सिंपल ग्राउट के या मिक्स के अंदर ये डिफरेंट चिप्स के दाने यानी डालते थे, एंड दे मेक अ फ्लोर, एंड आफ्टर दैट दे डू द ग्राइंडिंग. इसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग होती है. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर उसकी कोई खराब हो जाती है या उसका कलर डल हो जाता है, आप दोबारा ग्राइंडिंग करते थे, वो फिर नीचे से उसका कलर वैसे ही निकल आता था, उसकी पॉलिशिंग कर देते थे. सो टेरेजो जो है, द स्टैंडर्ड टेरेजो इज अ ग्राउंड एंड पॉलिश टेरेजो फिनिश कंसिस्टिंग मेनली ऑफ रिलेटिवली small stone chips. When tine terrazzo is ground and polished terrazzo
consisting mainly of large stone chips with small chip fillings. Metal or metallic tape divider strips to normally जो है हम metallic strips या metal strips देते हैं to localize shrinkage cracking to severe as to serve as a construction joint to separate different colors and to act as a decorative element. रीजन क्या है कि अगर आपने ये कहीं पर भी ये चिप्स का या टरेजो जैसा बोलते हैं का फ्लोर देखा हो तो उसमें प्रॉपरली वो शीशा एक देते होते थे किसी दौर में, शीशा कह लें या वो जॉइंट्स वो लोकली एक तो वो श्रिंकेज क्रैकिंग प्रोवाइड करता है क्योंकि ये सीमेंटेशियस मटेरियल होता है तो ज़्यादा लॉन्ग सरफेस एरिया पे हो तो वो श्रिंकेज क्रैकिंग करेगा। सब एज ए कंस्ट्रक्शन जॉइंट के अगर बहुत बड़ा फ्लोर है कहीं पर आपको कंस्ट्रक्शन रोक रही है नेक्स्ट स्टार्ट कर रही है तो उसी मेटल स्ट्रिप पे आप इसको रोक देते थे टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स। बहुत सारी जगह पर कलर पैटर्न के बनाने के लिए भी यूज होता था टू एक्ट एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट। अगर आप इस पे बात करो तो ये देखो मैं अगर इस पे ये प्रॉपर स्ट्रिप्स यूज करूँ इसको इससे ये कलर भी बना रहा है डिजाइन चेंज कर रहा है एंड आल्सो वी कैन मेक दिस साइड ऑफ अ फ्लोर। ये बॉटम कुशन है वायर मेश की तरह का और टॉप के ऊपर ये सारी मिक्स करके की गई है एंड दिस इज अ डिवाइडर स्ट्रिप। एक काम भी यहाँ सॉल्व करना पड़ सकता है that also act as a you can say construction joint and this is a terrazzo topping and this one is a bed और इस पे वायर मेशिंग भी दी जाती है with isolation and membrane. So wooden flooring is valued in residential application for warmth and beauty. It is used extensively for athletic floors such as बास्केटबॉल वॉलीबॉल और बहुत सारी जगह पर आता है घरों में भी यूज होता है वुडन फ्लोर डांस फ्लोर थिएटर्स आजकल तो इसके बहुत सारे यूजेस है। मोस्ट कॉमनली यूज वुड्स आर एशवुड यूज करते हैं वाइट कलर में बीच है ब्रिक है येलो कलर में चेरी मैपल पीक और ओक पाइन वॉलनट सो डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है डिफरेंट वुड्स अवेलेबल है दुनिया में जो कि यूज करते हैं। Unlike the other floor covering, controlling the moisture content of wooden floor during fabrication installation is imperative and it's a hydrophobic material. एक चीज़ है wooden में जो सबसे ज़्यादा important करती है that is its hygroscopic material and जो इसमें होता है ना moisture वो तंग करता है क्योंकि अगर moisture आ जाए तो एक तो प्रॉपरली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी इसको इंश्योर किया जाता है कि मॉइस्चर इसमें ना आए और लेटर ऑन उसकी जो टॉप सरफेस है उसको भी प्रॉपरली किसी ना किसी ऐसे सीलेंट मटेरियल से लाइक वार्निश इस तरह के मटेरियल से कवर किया जाता है कि लेटर ऑन ये तंग ना करे। और आजकल तो इवन टाइल्स में भी वुडन कलर अवेलेबल है वो भी फिनिश दे देता है वुड की बट ऐसा जो वुड की फिनिश वुड देगा ऑब्वियसली उसमें नहीं आएगी बट वुडन फ्लोरिंग को प्रॉपरली इंश्योर किया जाता है कि वो वाटर से बचे। और हिस्टोरिकल स्ट्रिप्स एंड प्लैंक्स वर यूज जो वुडन स्लीपर बॉटम पे यूज किए जाते हैं और टुडे स्ट्रिप्स प्लैंक्स आर इंस्टॉल्ड ओवर प्लाईवुड बेस। और अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं ये बॉटम के ऊपर प्रॉपर एक फ्रेम बनाया जाता है और ये स्पेस दी जाती है फॉर वेंटिलेशन। अगर ये वेंटिलेशन नहीं देंगे तो वुड नीचे से खराब हो जाएगी। ये प्रॉपर स्पेस होगी वेंटिलेशन के लिए एयर सर्कुलेशन होगी प्लाईवुड का प्रॉपर सब पैनल सब फ्लोर बनाया जाएगा टॉप के ऊपर ये वुडन के पैनल लगाए जाएंगे एंड देन लेटर ऑन जब इसको चाहो आप रिमूव भी कर सकते हैं एंड आल्सो प्रोवाइड अ वेंटिलेशन। और पॉलीथीन फिल्म यहाँ पर इसलिए यूज की जाती है ताकि इसको बॉटम से भी वो मॉइस्चर को ना आने दे और टॉप से भी ना आने दे वो मॉइस्चर को इसको प्रोटेक्ट करती है। ट्रीटेड वुडन स्लीपर्स यूज करते हैं और वेपर बैरियर फॉर कंक्रीट स्लैब्स। दिस ऑल आल्सो आर द वुडन फ्लोर डिटेल। एक उसका जॉइंट कैसा होगा टंग एंड ग्रूव जॉइंट है 3/4 इंच फ्लोर सेटिंग इन मैस्टिक और ये सारे का सारे डिटेल्स में जो है दिस शोज अस अ वुडन फ्लोरिंग। अगर आप देखो सिंपल ये वुड अगर आप ये बात करो कि ये वुडन फ्लोर है इसके नीचे पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा वुडन पैनल्स जो है वो रेस्ट कर रहे हैं जो मैं पहले डिस्कस किया। स्टोन टाइल्स भी अवेलेबल है। लेट्स से आपने देखा हो घरों में पत्थर लगवाते हैं मार्बल है लाइमस्टोन है यू कैन से सनी ग्रे है ग्लेक्सी ब्लैक है ग्रेनाइट है। तो ये क्या है ये स्टोन्स है सारे। तो नॉर्मली दे कट इन रेगुलर पैटर्न स्टेज पे यूज करते हो उसका डिफरेंट साइज होगा
फ्लोर पे यूज़ करोगे उसका डिफरेंट साइज होगा, 1x1 फुट, 2x2 फुट, जितना आप साइज उनको होगे उस हिसाब से रहता है. So stone panels for flooring are also dimensions or known as dimension stones as the natural stone that have been selected and fabricated, cut and trimmed to help size and shape with or without mechanical dressing. So different available है so stones, different sizes में आप उसको use कर सकते हो. हेलो, सॉरी ये कॉल बीच में इंटरप्ट हुई थी. आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? यस सर. अच्छा, ये बीच में इंटरप्ट हुई थी. So stone tiles, stone panels are used for flooring with natural stones और उनको properly shape में cut trim किया जाता है. Let's say also ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. ये अगर देखा जाए तो ये ऑस्टन हॉल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सारे के सारे स्टोन की बिल्डिंग है और इसकी जो जितना सरफेस पे यूज़ किया गया दैट इज़ अ स्टोन. So it's an important to note that the properties of stone critical for selection कि किस जगह यूज़ कर रहे हो, इंटीरियर फेस पे, एक्सटीरियर फेस पे, उसका वेदरिंग एक्शन, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, नेचुरल स्टोन फॉर फ्लोरिंग, मार्बल, लाइमस्टोन. फ्लोर के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, वॉल्स के लिए डिफरेंट होगी क्योंकि फ्लोर के ऊपर ऑब्वियसली लोड आना है तो ग्रेनाइट या मार्बल, लाइमस्टोन जो भी यूज़ करोगे. स्टोन पैनल्स आर uniformly fabricated with back being left और ये जो है ना फ्रंट साइड से तो इसको प्रॉपरली फैब्रिश किया जाता है, बैक को रहने दिया जाता है, कट इनटू डिफरेंट थिकनेसेस इन डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट साइजेस. नेक्स्ट इज ये स्टोन टाइल्स यूज की. अगर आप ये देखो ये वाइट कलर का स्टोन है, आई थिंक सो सनी ग्रे टाइल, ये वाला भी पूरा का पूरा उसी शेप में यूज किया गया विद सम ऑफ द डिवाइडर्स और ये डिफरेंट स्टोन्स के कॉम्बिनेशन है, मोज़ाइक टाइप बनाया गया. ठीक है. सो इट कैन बी यूज इंडिविजुअली, इट कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन. For tiles or slab may be laid irregular regular pattern over Portland cement. Obviously नीचे Portland cement का बेड होगा या मोटार का या along with some of the bonding agent. In metasimmer installation of ceramic tiles, this tile flooring may also be applied using thickest method. ये सिंपल मार्बल फ्लोर विद डिफरेंट मार्बल्स, ये भी मार्बल है, ये भी डिफरेंट कलर के मार्बल्स हैं, उससे फ्लोर बनाएंगे और पिंक मार्बल की वॉल बनाएंगे. ठीक है. इन मार्केट वी आर अवेलेबल विद डिफरेंट कलर्स, नेचुरल 5 कलर्स हैं और हर कलर ग्रेनाइट के डिफरेंट कलर है, लाइमस्टोन के, मार्बल के और पॉलिश हो के उसके. ये हमें जब ये मार्केट से मिलता है तो ये पॉलिश नहीं होता और ना ग्राइंड होता है, बट इसका कलर जो डिस्प्ले में देते हैं वो ये होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू परचेज तो थोड़ा बहुत तो वो डिफरेंस आ जाता है. carpeting, that is also a flooring. Okay. Means carpeting का scenario थोड़ा different है. ये simple flooring से different है. The most technically comfort floor covering is carpet with a long history of rugs और carpets available. तो शुरू से बारिशों के दौर से चलता आ रहा है, rugs और ये carpets available है and even they are not continue to cover the choice due to its softness, contribution of quietness, motional feeling. और अगर आपने देखा हो तो जहाँ पर कारपेट होता है तो साउंड प्रूफ होता है, थोड़ा सा वाइट रहता है, सॉफ्टनेस है. और इवन इफ यू गो टू सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स तो वहाँ पर बहुत बहुत बड़ा सिंगल पीस मेड का कारपेट भी है. लाइक इफ यू गो टू शेख ज़ायद मॉस्क इन अबू धाबी तो वहाँ पर पूरा का पूरा कारपेट वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड बिगेस्ट कारपेट है जो ईरानियों ने बनाया हुआ था, एक ही थ्रो में, उसमें कोई पीस नहीं है, ज्वाइंट नहीं है. सो फाइबर द बेसिक कंपोनेंट्स और फाइबर इसको बनाने के भी बहुत सारे मेथड है. खैर वो तो हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. कारपेटिंग प्रोवाइड फ्लोर विद बोथ विजुअल एंड टेक्सचर सॉफ्टनेस, वार्म इन वाइट कलर्स पैटर्न्स में अवेलेबल है. नॉर्मली इंस्टॉल्ड विद द, चाहे इसको कारपेट्स को वॉल के साथ भी इंस्टॉल किया जा सकता है, फ्लोर्स के साथ भी, डिपेंड है कि किस जगह पर आप इसको यूज़ कर रहे हो. ये डिफरेंट कारपेट की कंस्ट्रक्शन के मेथड्स है, हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे. स्ट्रेचिंग है, डायरेक्ट, अच्छा इसको ग्लू करने के भी ग्लू डाउन है, डबल ग्लू है. अगर आप देखो तो कारपेट को अप्लाई किया जाता है विद सम ऑफ द ग्लू. फ्लोर के ऊपर है ये जो है, वॉल के ऊपर है, कि पूरा पूरा वॉल के ऊपर कारपेट लगाया गया, वो फ्लोर के ऊपर लगाया गया. ठीक है.
Next is glass tiles. Glass tiles आपने देखी होगी. Sometime we use in washroom, sometime we use in kitchen, sometime we use in partition walls. ये बहुत सारी जगह partition wall के तौर पे भी use होती है. Aesthetics के लिए use होती हैं. And market में बहुत सारे available है इस तरह के colors, so you can use whatever you want. Resilient flooring. Resilient flooring materials provide us economical, relatively dense, non-absorbent flooring surface which is durable and easy to maintain. Especially ये शॉपिंग मॉल्स, बिगर प्लाजाज में रेजिलिएंट फ्लोरिंग यूज होते हैं. एक तो ड्यूरेबल होती है, इजी टू मेंटेन, देयर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस और यू कैन से कंफर्टेबिलिटी लेवल इसकी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज इसको अगर मैं बताऊँ, देयर आर टू form of resilient flooring. Tiles है, ये sheets है. Resilient tiles are uniform sized, most commonly 12 inch. अब पहले 12 inch स्केयर में होती थी, बट आजकल तो ये बहुत सारी larger size में अवेलेबल है. Tiles are usually economical and used with the joints without any objection. Resilient sheets available in roll of continuous lengths, typically 6 to 12 inch width. एंड अगर आपको मैं दिखाऊं तो टाइप्स ऑफ रिजिलिएंट फ्लोरिंग में सॉलिड विनाइल टाइल्स है, विनाइल टाइल्स है, रबर टाइल, शीट विनाइल, कॉक टाइल्स एक्सेट्रा. अगर ये शॉपिंग प्लाजास के हाई परफॉर्मेंस विनाइल कंपोजिट फ्लोर टाइल है. ये देखो, इस पे अगर आप व्हील बैरो भी कर रहे हो या कैरी कर रहे हो या वॉकर कैरी कर रहे हो या बच्चों के, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसकी टॉप फिनिश जो सरफेस है दैट इज रेजिस्टेंस, that's having a so much high resistance that even you cannot produce a single scratch. जो मर्जी से रब करो वो सिंगल स्क्रैच भी नहीं आता. सो ये बड़े साइज में भी अवेलेबल है मार्केट में, 12x12 साइज में भी अवेलेबल है. पहले पहले छोटे में थे, आजकल लोग बड़े साइज की टाइल्स को प्रेफर करते हैं. दिस आल्सो गिव अस विनाइल शीट्स भी अवेलेबल है. ये भी मतलब आप यूज़ कर सकते हो. अगर ये देखा जाए तो पैसेज के ऊपर उन्होंने यूज़ की गई है. सो ये शीट थोड़ी हाई होती है ताकि वो उसको पैसेज को कंट्रोल कर सकें. ये सिंपल विनाइल शीट्स, उसकी कंपोनेंट थिकनेस, साइजेस इसके ऊपर मैटर करते लिखे हुए. अदर फ्लोरिंग टाइप, ब्रिक का फ्लोर भी हो सकता है, कंक्रीट का, स्पेशलिटी फ्लोर, क्लियर फिनिश का. अगर आप ब्रिक की बात करो, आजकल तो ब्रिक का फ्लोर बहुत कम यूज होता है. पहले पुरानी बिल्डिंग में यूज होता था दैट एंटी फेस पे, बिकॉज इट डोंट लुक सो गुड. कंक्रीट फ्लोरिंग भी आजकल कम यूज होती है. विद सम ऑफ द स्टेन अ प्रॉपर फिनिश इज अप्लाइड. एसिडिक स्टेन भी आ सकते हैं which penetrate into the concrete visibility. This finish has molded appearance and can be left in it. For example, अगर आपसे बात करूँ, सिंपल कंक्रीट के अंदर हम स्टेनिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स डाल के. ये सिंपल कंक्रीट फ्लोर है, उसके बीच में हम डिफरेंट कलर मटेरियल डाल दें तो हम डिफरेंट कलर्स के कंक्रीट फ्लोर जो है ना, कंक्रीट स्टेनिंग मेथड के थ्रू अचीव कर सकते हैं. इसका कलर डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है. और ये जो जॉइंट्स दिए गए ये इंटेंशनली दिए गए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मैसिव कंक्रीटिंग करते हो तो ऑब्वियसली उसमें चांसेस है क्रैकिंग के, श्रिंकेज क्रैकिंग के. उसको अवॉइड करने के लिए एक तो टेक्सचर भी बन जाता है, दूसरा कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी आ सकता है और उनका कलर भी हम अचीव कर सकते हैं. अगर आप देखो, clear finish concrete, and the popular finish is the application of clear or tin sealing product that can be polished to high gloss. ये हम विदाउट एनी कलर अगर बात करें तो कंक्रीट का ही अपना कलर है, इसको सील कर दिया और ये अनसील्ड है. ये ओरिजिनल कंक्रीट का कलर है, अगर इसको हाई ग्लॉस पॉलिश से फिनिश कर दो तो ये सील्ड हो जाएगा. ठीक है, वो उसकी लाइफ थोड़ी सी इससे भी इंक्रीज कर देंगे. There are many floor covering products that can be used specially for this purpose. This include rubber mats available है, स्विमिंग पूल के गिर डालते हैं, एथलेटिक लॉकर्स में, एलिवेटेड एक्सेसरीज में, कंप्यूटर इक्विपमेंट में. सो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की अवेलेबल है दैट कैन बी यूज फॉर फ्लोर फिनिशिंग. ठीक है, दिस इज अ सिंपल, अगर आपसे मैं सिंपल एग्जांपल में बात करूं, फ्लोर फिनिशेस तो बहुत डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं. ठीक है, बट if I talk about that what we have studied up till now, मार्केट में स्पेशली इन पाकिस्तान, बट ही हैव टर्न स्टोन भी यूज हो रहे हैं. स्टोन नाउ इज नॉट सो, यू कैन से, इन रीजन इज आल्दो वो चीप भी है कि उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इवन विद ग्राइंडिंग, और आपस में भी उनका कलर एग्जैक्टली 100% सेम नहीं होता.
टाइल्स इसलिए ज़्यादा यूज हो रही है, एक तो आपको गारंटी होती है जिस कलर में टाइल्स है जो भी पैटर्न अवेलेबल है उसी में मिलेगी। सेकंड थिंग, इजी टू अप्लाई, इजी टू, हाँ उतनी लाइफ नहीं होती जितनी स्टोन की होती है, क्योंकि स्टोन अगर खराब भी सरफेस हो जाए तो दोबारा ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के बाद फिर नया हो जाता है, बट टाइल में ये इशू नहीं है। टाइल में एक और चीज़ मैटर करती है दैट यू शुड इंस्टॉल इन सच अ वे कि उसके जॉइंट प्रॉपरली फिल लो, मतलब एक तो जॉइंट ऐसा आए कि उसमें गैप आए, सो दैट दैट ट्रैप एयर ऑफ द बॉन्ड शुड गो अप। लेटर ऑन वो फिर वो अगर वो एयर बीच में रह जाएगी तो लेटर ऑन वो सारी की सारी टाइल खराब हो जाएगी, खुद ही ज़मीन से लैदा होने शुरू हो जाएगी। और अगर वो जॉइंट प्रॉपरली मतलब उसके जॉइंटिंग के साथ या उसमें ग्रूव देके किया गया, आफ्टर दैट यू शुड फिल इट विद द ग्राउंड, एनी ऑफ द गुड ग्राउंड, ताकि उसमें वो उसमें कैविटी में जाए। रिमेनिंग एनी अदर क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर, फ्लोरिंग में या कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। सर जब हम वुडन फ्लोरिंग जो है अप्लाई करते हैं उसके नीचे वो जो वेंटिलेशन है वो किस तरह से होगी, क्योंकि साइड पे तो हमारी वॉल्स हैं तो उसके अंदर अंदर इसने रहना, हाँ तो दोबारा से बात। हाँ, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नॉर्मली ये क्या करते हैं, वो बात आपकी ठीक है, अगर साइड पे वॉल्स हैं तो कहीं ना कहीं इसकी कोई थोड़ी बहुत डेप्थ होगी, वो आपकी डोर एंट्रेंस के पास हो सकती है डेप्थ, ठीक, या हम ओपन कहीं ना कहीं विद इन हाउस डेप्थ देंगे। अगर आप उसको बिल्कुल, ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा वेंटिलेशन होती है, वो आप टोटल 2 या 3 इंच का भी ऊपर रख के यूज कर सकते हो। अगर आप उसको बिल्कुल फ्लोर के साथ लगाओ, एक तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है, इवन यू यूज द पॉलीथीन। सेकंड थिंग इज उसको अगर वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा फिर भी वो खराब होगी, उसमें दीमक लगेगी, और ये वेंटिलेशन रहेगी तो ये दीमक और इन सब चीजों से वो बची रहेगी। तो जहां पर वुडन फ्लोर आता है उसको प्रॉपरली प्लान करते हैं कि कहीं ना कहीं से इसका थोड़ा सा गैप छोड़े ताकि इसकी सर्कुलेशन हो एयर की। और आजकल तो वैसे मैंने देखा है बहुत सारी जगह ऐसे भी अप्लाई कर देते हैं, वो नीचे ना रबर मेम्ब्रेन की या इस तरह की शीट डाल देते हैं कि जी नहीं हम पानी से इन कांटेक्ट आने नहीं देंगे, तो लोग चेंज कर देते हैं। ये अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो यही प्रोसेस है कि जिससे आपको वुड की लाइफ इंक्रीज कर देती है। आजकल यूज भी वो प्लाई वुड और इस तरह की चीजें यूज हो रही है तो वो भी मैटर करता है। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें प्लीज। बहुत अच्छी लगती है, और अगर आपने देखा हो प्रॉपर हो तो और इसके जो बॉटम है उसको भी प्रॉपरली कवर होना चाहिए, अदरवाइज बात का चलते हैं तो ये थोड़ी सी नॉइस भी क्रिएट करता है। टाइल्स भी नहीं क्रिएट करता, वुडन टाइल्स होती हैं, लेकिन वुडन फ्लोर के अंदर ये नॉइस क्रिएट करता है क्योंकि नीचे गैप होता है। उसको प्रॉपरली जो है ना मैनेज करना चाहिए ताकि वो इस तरह का साउंड ना आए। रिमेनिंग बाकी टाइल्स में यही आपको बताया कि उसमें थोड़ा सा ग्रुप दे के, और वो ग्रुप भी मैटर करता है कि कितने साइज की टाइल है। छोटे साइज की टाइल में ग्रुप भी छोटा आएगा, बड़े साइज की टाइल में ग्रुप भी बड़ा आएगा। मार्केट में वो स्पेसर भी अवेलेबल है जिसके थ्रू नॉर्मली वो जब हमेशा टाइल में प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि जब तो एक तो वो में गैप ना दे और कॉर्नर के साथ कॉर्नर ना मिले टाइल का, उसकी जो यानी कि सरफेस है, अगर कॉर्नर के साथ, क्योंकि कभी भी टाइल्स में हम स्लोप नहीं देते, वो एक सरफेस पे होती है, अगर स्लोप देने लग पड़ो तो टाइल सही इंस्टॉल ही नहीं होती। हाँ आप उसमें स्टोन में दे सकते हो क्योंकि वो बाद में ग्राइंडिंग में कवर हो जाता है हट होके। टाइल में प्रेफरेबली वो एक सरफेस पे रहता है। लो, किसी और को क्वेश्चन है कि नहीं? सर जब हम वॉल के साथ टाइल्स लगा रहे हैं तो जब तक मोर्टार अभी तक मतलब ड्राई नहीं हुआ तो उसका टाइल का नीचे गिरने का नहीं खतरा होता, मतलब लगाने के दौरान ही इस तरह से। नहीं, वो होता ये है कि नॉर्मली डेट इज इंस्टॉल्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है ना। अब होगा क्या कि जो सबसे नीचे यस। टाइल लगेगी ना उसको कहीं ना कहीं किसी चीज पे सपोर्ट करते हैं, या तो वो निचले फ्लोर पे सपोर्ट होता है या वो नीचे रखते हैं चपटी, ठीक है। उसके ऊपर वो पहली टाइल को सपोर्ट करते हैं और मोटार के साथ वो उसके ऊपर रहती है। जब दूसरी उसके ऊपर टाइल लगाओगे यानी कि दूसरा कोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली उसका वेट किस पे जाएगा, पहली टाइल का। तो जो बॉटम सपोर्ट है वो सारी के साथ, ये कभी नहीं होता कि वो लगा के तो छोड़ के आगे, ऑब्वियसली वो तो मोटार होगा, बॉन्ड गीला हो गिर जाएगी।
होगा ये कि वो बॉन्ड वॉल को तो पकड़ लेता है लेकिन उसका लोड बॉटम पे शिफ्ट हो रहा होता है। सो बॉटम पे उसके एक सपोर्ट देते हैं जिसको नेक्स्ट डे रिमूव करते हैं जब तक वो हार्ड ना हो जाए। वो सारी की सारी प्रॉपर जॉइंटिंग के साथ उसको करते हैं। और एक वो जो वॉल पे जो बॉन्ड लगाते हैं ना वो थोड़ा वैसे भी हार्ड होता है बनिस्बत फ्लोर के। फ्लोर पे जरा वेट कंडीशन में होता है बॉन्ड थोड़ा सा मतलब मैं ड्राई की बात नहीं कर रहा, वो इतनी ज़्यादा होमोजीनियस नहीं होता जो कि फ्लोर का होता है। एक तो उसको ले करके और उसको प्रॉपरली फिक्स करते हैं, वो कभी भी नहीं गिरती जब तक वो बॉटम की सपोर्ट रहे। नेक्स्ट डे उसको रिमूव कर दो, वो वैसे बॉन्ड बन होता है वॉल से। ओके सर। एनी अदर? किसी को भी क्वेश्चन? सोए तो नहीं हुए सारे? जो हमारी रेजो है इसमें सर हम अलग से मतलब चिप्स से टाइल्स बनाते हैं या फिर पूरे फ्लोर पर इसे कास्ट करते हैं? नहीं नहीं, जो टेरेजो होता है ना, देखो एक तो टेरेजो सिंपल हो गया ना कि सेम टेरेजो सारा का सारा। एक होता है आपने देखा होगा डिजाइन भी बने होते हैं, तो वो ये होता है कि किसी यस कलर वो जो पैटर्न बनते हैं ना, एक साइड पे एक कलर का टेरेजो आ जाए, उसको वो यानी कि जहाँ डिवाइडर आएगा उसके दरमियान एक कलर होगा, दूसरी साइड में दूसरे कलर का होगा। वो चिप्स के दानों का कलर फर्क होता है ना, बाकी मटेरियल तो सेम ही होता है। ठीक है, तो वो डिजाइन उस पैटर्न से बनता है, उसके भी डिवाइडर का कलर डिफरेंट होगा, तो वो उससे बनता है। अदरवाइज देखा मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, एक मिनट ठहरो, ये इसमें हमने जब पढ़ा था ये वाला, ये टेरेजो और ये आप देखो ना, ये टेरेजो जो है इसमें ये वाला चिप्स का कलर फर्क है, इसका कलर फर्क है, यानी कि है तो दोनों बॉन्डिंग मटेरियल के अंदर वो चिप्स के दाने, ये वाला फर्क है। तो डिवाइडर्स यूज करेंगे, इसके अंदर वो मटेरियल यूज करेंगे, इसके अंदर कास्टिंग जब होगी इसकी तो ये सारी के सारी एक लेवल पे होगी, ये डिफरेंट मटेरियल हो। और बाद का जैसा करते हैं, ये एक दिन कर लेते हैं, ये दूसरे दिन करते हैं, करने के बाद इसकी ग्राइंडिंग इकट्ठी करते हैं ताकि वो फिनिशिंग जैसी है। ठीक है, ओके सर। एनी अदर? अगर नहीं क्वेश्चन तो फिर फिनिश करें। इट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, ओके फिर। सर एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलो। सर वो इसमें वो जो नीचे मैश लगाते हैं उसका क्या 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 होता है, उसकी क्या रीजन होती है? वो ट्रेजो के नीचे यार वो मैश इसलिए लगाते हैं कि फ्लोर के साथ उसका जॉइंट प्रॉपर बने। होता ये है कि ये मटेरियल होता है सॉफ्ट, नीचे होता है कंक्रीट, तो वो हाँ वैसे ही हार्ड हो गए होते हैं। मतलब आपको पता हो कि इवन बॉन्ड का कंक्रीट के साथ जॉइंट बनता है, इसमें बॉन्डिंग मटेरियल कोई नहीं होता। यहाँ ऊपर भी कहीं ना कहीं अगर हम जब एक दफ़ा लेट से प्लस्तर टूटता है तो प्लस्तर के दरमियान हम वायर मैश यूज़ करते हैं ना, ताकि बॉन्ड प्रॉपर बन जाए। तो इस चिप्स का के मटेरियल का फ्लोर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हम वो वायर मैश यूज़ करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, लेकिन वो पहले अगर आजकल तो बहुत अच्छे बॉन्ड्स भी अवेलेबल है जो कि रेजो में डालते हैं ना, भी वो यूज़ किया जाए तो वो मिल जाता है, वो बॉन्ड इतना इशू नहीं होता वो। ओके सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।